In previous video, we have seen the concept of electric charge, the properties of electric charge and various knowledge about electrostatics. In that video, we have seen if there are two charges, there will be force of attraction or repulsion between them. If the charges are same, there will be repulsion, and if the charges are of opposite nature, there will be attraction. But now, by the Coulomb's law, we can find the amount of force between the two charges very easily. If you have not seen the previous video, first watch that video, then after come to this. Clear? Now let's start Coulomb's law. It was given by the scientist Charles Augustin Coulomb. Clear? Now what he said, if there are 2 point charges, suppose there is Q1 and Q2. Clear? Two particles, one have charge Q1 and another have charge Q2, and the distance between them is small r. Clear? Distance between the charges are small r. Now we already know that on Q1 there will be force by Q2, and on Q2 there will be force by Q1. Clear? Now if Q1 is experiencing force by Q2, both are of positive. For example, we have taken both charges as positive. Now if Q2 is applying force on Q1, then it will go like this, and if Q1 is applying force on Q2, then it will repel like this. Now we can say that whether the force Q1 is applying force on Q2 or Q2 is applying force on Q1, but the line of action will be the same, like that. मतलब जो हमेशा फोर्स लगेगा वो हमेशा कहाँ रहेगा, इसी R के लाइन में. ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ये स्लाइटली टिल्ट हो जाए या ऐसे नीचे आ जाए, ये हमेशा कैसे रहेगा, स्ट्रेट ही रहेगा. Now let's see what is Coulomb's law. What he said. Now first of all, we have know that the Coulomb's law is experimental law. That means this law was given by various experiments. Clear? Now see what he said. Force is directly proportional to product of Q1 and Q2. What he said? Force of attraction or repulsion between two stationary charges. Stationary charges के साथ अपन इसको पॉइंट भी कर देते हैं, मतलब ये कंपलसरी है कि पॉइंट चार्ज ही होना चाहिए, तभी अपन वहाँ पर Coulomb's law लगा सकते हैं. ये इसकी लिमिटेशन है, वो आगे देखने वाले हैं अपन, इसकी बहुत सी लिमिटेशन है. पर यहाँ पे अगर अपन बात करें तो दोनों चार्जेस का जब भी प्रोडक्ट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. ये तो फर्स्ट बात बोली किसने, Coulomb ने. सेकेंड थिंग, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. व्हाट इट मीन्स, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो चार्जेस हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो स्क्वायर होगा वो फोर्स के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. यही सेम चीज़ हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी देखी थी. बट नाउ इसी वजह से मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है, ये तो था इसका न्यूमेरिकल फॉर्म, और ये है इसकी डेफिनेशन कि अगर आपके पास आ जाता है स्ट्रेट Coulomb's law, देन यू हैव टू राइट दिस directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. Then by the definition we have wrote what, F is directly proportional to Q1 Q2, F is inversely proportional to 1/r². Now अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to 1/r². What it means that if there is force and the value of charges will be, for example, 2 and 3, that means F is directly proportional to 6. Clear? And if slightly the value will be increased, that means
suppose the value will be 6 of Q1 and the value of Q2 will be 5. That means the product will be 30. That means if the product value of the magnitude of charges will be increased, then the force of attraction or repulsion between the two charges will also increase. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भी ये होता है कि अगर Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर मैं Q2 को भी सेम रखता हूँ और सिर्फ Q1 को बढ़ाऊँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको 2 ही रहने देता, तो भी वैल्यू क्या हो जाती मेरी 10, यहाँ पे 6 आ ही रही थी। मतलब दोनों में से अगर एक वैल्यू भी इंक्रीज होती है तो भी फोर्स बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ बात किसकी कर रहे हैं अपन, प्रोडक्ट की। क्लियर? नाउ coming to the second step, that is F is inversely proportional to 1 upon r square. If F is inversely proportional to 1 upon r square, that means if the distance between the two charges will be increased, then the force will be decreased. Clear? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब भी ये होता है कि अगर हम बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो ये फोर्स क्या होगा, यहाँ पर कम होने लग जाएगा, और अगर हम प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर सिंबल की फॉर्म में लिखें तो F will be increased if Q1 Q2 will be increased, और F will be decreased if R square will be increased. ठीक है, ये सिंबल की फॉर्म में लिखा है अपन ने। अब अगर इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, इसकी डेरिवेशन के ऊपर चलें अपन, तो यहाँ से अपने को एक चीज़ क्लियर हो रही है, दैट इज़ बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कुछ नहीं किया है मैंने, दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया है। दोनों इक्वेशन अपने पास आई कहाँ से थी, बाय द स्टेटमेंट ऑफ कुलाम्स लॉ। ठीक है, अब ये मुझे पता चल गया है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? अब जब भी कहीं पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है या कोई भी प्रोपोर्शनल वाली चीज़ आती है या कोई भी डायरेक्शन डिपेंडेंट या फिर क्वांटिटी डिपेंडेंट चीज़ आती है, तो वहाँ पर एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंट होता है, सराउंडिंग जो होती है, उसका उस पर इफेक्ट होता है। उसी चीज़ को शो करने के लिए अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं कांस्टेंट का, पर्टिकुलर कांस्टेंट। हर एक इक्वेशन में डिफरेंट कांस्टेंट यूज़ में आते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ में आता है दैट इज़ F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये K क्या है मेरा, दो नाम है इसके। पहला नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्लियर? और बहुत सी बुक्स में आपको कुलाम्स फोर्स कांस्टेंट के नाम से भी ये मिलेगा। कौन? के। मतलब इसके दोनों नाम होते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कुलाम्स फोर्स कांस्टेंट। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि ये के किसको शो कर रहा है यहाँ पे, तो आपको बस इतना समझना है कि दो चार्ज होंगे, इनको आपने जहाँ पर भी रख रखा है, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आपने इनको एयर में रख रखा है, वैक्यूम में रख रखा है, ओपन स्पेस में रख रखा है, ग्लिसरीन में रख रखा है, वाटर में रख रखा है, मतलब यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। तो ये जो मीडियम की प्रॉपर्टी है वो कौन बताएगा यहाँ पर, के। क्लियर? तो के इज़ व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, कुलाम्स फोर्स कांस्टेंट। पर अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो कुलम्स लॉ का जो एक्सप्रेशन अपने पास आएगा, दैट विल बी नॉर्मली F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखते हैं K की वैल्यू क्या होती है। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसका यूनिट नहीं होता है। बिल्कुल होता है। SI के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। अब यूनिट अपने को याद नहीं रखने हैं, अपन ने यूनिट डिराइव करने सीख रखे हैं, अपन यहाँ पर भी वही प्रिंसिपल लगाएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर K का यूनिट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सप्रेशन में मैं सब्जेक्ट किसको बना दूंगा, K को। तो क्या हो जाएगा, K इक्वल्स टू F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पे जो क्वांटिटी आपने लिखी है उसका जो ऐसा यूनिट होता है आपको लिख देना है। F का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। R का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर है तो यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर।
Q1 एंड Q2 मतलब कूलाम इंटू कूलाम, जिसकी वजह से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 2। जब भी आप कहीं पर भी ऐसा यूनिट लिखते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो भी यूनिट्स साइंटिस्ट के नाम से होते हैं अपने, जैसे न्यूटन इज़ गिवन बाय द न्यूटन जो साइंटिस्ट था उसकी वजह से, कूलाम की वजह से, तो उनको अपन रेस्पेक्ट देने के लिए हमेशा उन चीज़ों को अपन क्या लिखते हैं, कैपिटल में। तो एन इसलिए मैंने किस में लिखा है, कैपिटल में, और सी भी किस में लिखा है मैंने, कैपिटल में, और मीटर मैंने किस में लिखा है, स्मॉल लेटर में। तो इस तरीके से मैंने के की यूनिट को क्या कर लिया है, डिराइव। क्लियर। अब के और भी है, ऐसा नहीं है के ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। के लिए मैंने बोला है इट विल शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम, दैट मीन्स सराउंडिंग। तो मतलब अगर अपन के अंदर और डीप में जाते हैं तो अपने को यहाँ कुछ और बात जानने को मिलेगी, वो देखते हैं अपन। एक बार फिर से इतना सा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि कूलाम्स लॉ की बात कर रहे हैं अपन। कूलाम्स लॉ अपन इसलिए लेके आए हैं ताकि अपन जान सकें कि कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस है उनके बीच में अगर अट्रैक्शन है और रिपल्शन है तो फोर्स है वो, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या है, उस चीज़ को पता करने के लिए अपने को किसके पास आना पड़ा, कूलाम के पास। ठीक है, कूलाम भी था जिसने ये बताया कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 2 चार्जेस के बीच में फोर्स के बारे में पता कर सकते हो। स्टेटमेंट में क्या बोला है इन्होंने कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 स्टेशनरी चार्जेस दैट विल बी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of 2 charges and inversely proportional to the square of distance between them। Clear है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। Now इसके हिसाब से अपन ने बता दिया F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to 1 upon R स्क्वायर। जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आया अपने पास, और जब अपन ने प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो अपने को यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ करना था। वो कांस्टेंट क्या था मेरा, के। बहुत सी बुक में इसको सी भी लेते हैं, के भी लेते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है इसकी वैल्यू से। एसआई सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। अगर आप एमकेएस में जाएंगे, एफपीएस में जाएंगे, सीजीएस में जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अपन यहाँ पर एसआई की बात कर रहे हैं, एसआई में इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। और यूनिट अपने को अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आता है तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, डिराइव करने का तरीका, जिसका भी यूनिट आपको निकालना है वो जो एक्सप्रेशन है उसमें आप उसको सब्जेक्ट बना लो, बाकी चीज़ को आप अदर साइड भेज दो, जो भी क्वांटिटी है उसके आगे आप क्या लिख दो, उसका एसआई यूनिट, आपके पास में क्या आ जाएगा, उस क्वांटिटी का एसआई आ जाएगा। क्लियर। अब अपन के के बारे में देखते हैं, के क्या है ना। तो सबसे पहले अगर मैं के की बात करता हूँ तो के से आपको सिर्फ अभी इतना समझ में आ रहा होगा कि के जो है वो किसको शो करेगा, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को। मतलब जिस भी मीडियम के अंदर मेरे चार्जेस पड़े हुए हैं या फिर चार्जेस को मैंने रख रखा है, उस मीडियम की जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो के शो कर रहा है। और एसआई के अंदर के की वैल्यू है मेरी 9 × 10⁹ नाउ के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, 1/4 पाई, दैट इज द एप्सिलॉन, नाम है इसका, सिंबल है ये। अब ये क्या होता है उसको समझते हैं अपन एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल कैसे समझते हैं अपन, सपोज ये वाटर है आपके पास, वाटर के अंदर आपने एक रखा है Q1 और यहां रख रखा है आपने Q2। क्लियर। नाउ अपने को पता है कि इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, अगर दोनों सेम काइंड के हैं तो रिपल्शन और अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन। क्लियर। तो अगर मैं ऐसा मानूं कि यहाँ से Q1 से Q2 पे लग रहा है फोर्स, ठीक है, Q1 से Q2 पे लग रहा है फोर्स, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब अगर ये फोर्स इस पे लगा रहा है मतलब ये फोर्स को कैच कर रहा होगा। मतलब अगर मैं किसी को कोई चीज़ देता हूँ तो वो इंसान उसको कैच करता है। मैंने आपको अगर बॉल दी, आपने बॉल को कैच किया, ठीक है ना। तो उसी तरीके से Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स लग रहा है तो Q2 क्या कर रहा है, इसको एक्सपीरियंस कर रहा है Q1 को। तो ऐसा मान सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल Q1 ने यहाँ से कितने कैचेस डाले, 100 कैचेस गए किसके पास, Q2 के पास। ठीक है, उसमें से जो 40 थे, 40 कैचेस जो थे वो किसने ले लिए, मीडियम ने एब्जॉर्व कर लिए। क्या कर लिया,
40 को किसने एब्जॉर्व कर लिया? मीडियम ने। अब Q1 ने फोर्स कितना लगाया था? फॉर एग्जांपल 100 का, ठीक है, उसमें से 40 किसने ले लिया? मीडियम ने। तो Q2 के पास आया कितना? 60। क्लियर? उसी तरीके से वापस देखते हैं एक एग्जांपल और। अब आपने रखा है कहाँ पर चार्ज को? ओपन स्पेस में या वैक्यूम में, Q1 Q2। अब वापस Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, वही 100 का, मतलब 100 हैंड्स इसने दिए या कैचेस दिए, जिस भी एग्जांपल से आपको समझ आ रहा है। अब सपोज यहाँ पर जो मीडियम था उसने जो एब्जॉर्व किए वो कितना किया? 20 कैचेस को एब्जॉर्व कर लिया। क्लियर? अब 20 कैचेस को अगर मीडियम एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, 100 थे, 100 में से 20 किसने ले लिए? मीडियम ने। यहाँ पहुँचे कितने? 80। अब आपको यहाँ से ये बात क्लियर हो रही होगी कि कहीं पर भी अगर अपन दो चार्ज रखते हैं तो वहाँ पर मीडियम का क्या रोल होता है, ठीक है ना। तो मीडियम ने अगर उसको एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है ना, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मीडियम हैव परमिटेड टू एब्जॉर्ब द क्वांटिटी। क्लियर? अब अगर आपके सामने एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, मैं आपसे पूछूं विच मीडियम, किस मीडियम की वजह से जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा? आप बोलेंगे सर ये, बिकॉज यहाँ तो 20 ही एब्जॉर्व हुआ है और यहाँ पे कितना एब्जॉर्व हो गया? 40। दैट थिंग इज कॉल्ड एज परमिटिविटी। इस चीज़ को अपन किस नाम से जानते हैं? परमिटिविटी। क्लियर है? मतलब जो भी मीडियम है मेरा, वो ग्लिसरीन भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, वो जो भी मेरे फोर्स को एब्जॉर्व करेगा वहाँ पर, उसके लिए मैं क्या बोलूँगा? परमिटेड टू एब्जॉर्व द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, क्लियर, गिवन बाय द चार्ज। और जो भी रेस्ट ऑफ अमाउंट बचेगा वो कहाँ पहुँचेगा? दूसरे वाले चार्ज पे। अब अगर मीडियम ने ज़्यादा एब्जॉर्व कर लिया है तो चार्ज पे कम पहुँचेगा, और कम एब्जॉर्व किया है तो ज़्यादा पहुँचेगा। क्लियर है मेरी बात? तो अब अगर मेरे को फोर्स ज़्यादा पहुंचाना है तो मेरे को एक बात बताइए, आपकी परमिटिविटी कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए? आप क्या बोलोगे? सर परमिटिविटी मतलब परमिट टू एब्जॉर्व द क्वांटिटी बाय द मीडियम। दैट मीन्स अगर परमिटिविटी कम है, दैट मीन्स अगर परमिटिविटी कम है तो मेरा फोर्स पहुंच रहा है दूसरे चार्ज के पास, और अगर परमिटिविटी ज़्यादा है तो मेरा जो मीडियम है वो फोर्स को क्या कर रहा है? ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहा है। ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहा है तो दूसरे वाले चार्ज के पास ज़्यादा पहुंच नहीं पा रहा है। तो अगर परमिटिविटी कम होगी तो फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। और परमिटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो फोर्स क्या होगा? दूसरे चार्ज के ऊपर कम होगा। दैट इज़ कॉल्ड एज परमिटिविटी। अगर डेफिनेशन की अगर आप देखते हैं तो डेफिनेशन में नॉर्मली इसका मीनिंग होता है ईज ऑफ एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है अपना अगले वीडियो में अपन देखने वाले, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने को इतना समझना है, परमिटिविटी मीन्स the quantity that is absorbed by the medium। क्लियर है मेरी बात? जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन। किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से, ठीक है ना। अब अगर इसके हिसाब से अगर k की जो वैल्यू देखी मैंने, k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज व्हाट? permittivity of medium, permittivity of medium। clear? The medium can be water, air, open space, glycerin, whatever, जो भी आपने मीडियम लिया है, जहाँ पे भी आपने चार्ज को रखा है, ठीक है। क्या इसके हिसाब से अपन ऐसा बोल सकते हैं k इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी तो k की वैल्यू घटेगी, ठीक है ना। तो ये कोई अपने पास रिलेशन निकल के आया है, k इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन। अगर परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और परमिटिविटी कम होगी तो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब सपोज आपने लिया है ओपन स्पेस और एयर। क्लियर? अगर आपने ओपन स्पेस लिया है और साथ में क्या लिया है? ओपन स्पेस या फिर एयर, दोनों का जो परमिटिविटी होता है वो बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है, बाकी सेम ही होता है। इस वजह से अपन ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं लाते, नॉर्मली इसको अपन सेम ही लेते हैं।
ओपन स्पेस और एयर को। तो यहाँ पे इसके लिए अपने को डिफाइन किया गया है कि परमिटिविटी ऑफ ओपन स्पेस और एयर विल इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब नथिंग। नथिंग मतलब इसमें जो वैल्यू है वो बहुत परमिटिविटी की बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। मतलब अगर आपने ओपन स्पेस में चार्जेस को रखा है तो जो मीडियम है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बहुत ही कम करेगा, नेग्लिजिबल अमाउंट में। इस वजह से अपन ने इसको किससे शो किया है? नॉट से। नॉट का मतलब नथिंग। दैट इज, इसकी वैल्यू अपन किस में लेते हैं? न्यूमरिक वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किस में लेते हैं अपन? न्यूमरिक वैल्यू होती है, और साथ में क्या होता है इसका? यूनिट। तो सपोजली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब फिर वही बात, यूनिट। फिर यूनिट याद नहीं रहा अपने को, तो अपन क्या कर सकते हैं? उसको डिराइव। तो सबसे पहले अपने को पता है के का एक्सप्रेशन के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन है। कुछ नहीं करना है आपको इसमें क्या कर लेना है? सब्जेक्ट किसको बना देना है? एप्सिलॉन को। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई के। क्लियर? अब ये बात अपन अच्छे से जानते हैं कि 4 पाई जो है वो मेरा कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 1/N/m² C-2। यही यूनिट आई थी अपन ने अभी देखी थी कुछ समय पहले, Nm², C-2। अब अगर इसको अपन नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? N⁻⁻m²। क्लियर है? कुछ नहीं हुआ है, ऊपर आ गया है, क्योंकि यहाँ नीचे अपन ने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया तो इन्वर्स हो गया। तो N⁻⁻1 m², कूलम स्क्वायर। दैट इज द यूनिट ऑफ व्हाट? एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन। अब अगर अपन वहाँ पे से फोर्स के पास चलें तो फोर्स को अपन ने वहाँ पे लिखा था कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ? K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि मेरे को पता नहीं मीडियम क्या है। अगर ओपन स्पेस बता रखा है तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा, पर मेरे को बता नहीं रखा है कौन सा भी मीडियम हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दैट विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज पॉइंट चार्जेस। क्लियर? अब यहाँ पर होता क्या है कि जो भी मेरे वैल्यू होती है परमिटिविटी की, जैसे कि एक तो अपन ने बात की ओपन स्पेस की। क्या बात की अपन ने? ओपन स्पेस की, ठीक है। और एक मैं बात कर रहा हूँ परमिटिविटी ऑफ वाटर की। तो इसके बारे में जो अपने को नॉलेज है, उसके हिसाब से जो वाटर की परमिटिविटी होती है दैट इज 90 टाइम्स ऑफ ओपन स्पेस। क्लियर? क्या बात बोली? 90 टाइम्स ऑफ ओपन स्पेस, मतलब इसकी 90 टाइम्स। जैसे फॉर एग्जांपल परमिटिविटी ऑफ ओपन स्पेस इज 1, देन द परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 90। ठीक है ना? मतलब अगर मुझे वाटर की परमिटिविटी निकालनी है तो मैं क्या कर लूँ इजीली? 90 इंटू एप्सिलॉन। क्लियर है ना? अब अगर यहाँ पे मैं बोलता 80 होती है, 80 टाइम्स, तो क्या हो जाता? ई ऑफ वाटर इक्वल्स टू 80 ऑफ एप्सिलॉन नॉट। मतलब टाइम्स का मतलब गुना, 90 गुना है इसकी। वाटर की जो परमिटिविटी है दैट इज 90 टाइम्स ऑफ ओपन स्पेस। ठीक है ना? तो इससे अपने को एक नया एक्सप्रेशन यहाँ से निकल के आने वाला है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं अपन इसको? रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है? तो आपने रिलेटिव वर्ड पहले सुना हुआ है। जहाँ पर भी रिलेटिव वर्ड आता है दैट मीन्स अपन किसी एक क्वांटिटी का रिलेशन दूसरे के साथ देख रहे हैं। आपने जैसे 11th में देखा होगा रिलेटिव डेंसिटी,
ठीक है ना। उसी रिलेटिव वेलोसिटी, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब वी आर कंपेयरिंग वन परमिटिविटी टू अनदर मीडियम्स परमिटिविटी, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसको मैं आपको बताता हूँ याद रखने का तरीका। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले लिख देना है नॉट एंड आर, ठीक है, और यहाँ लिख देना है एप्सिलॉन, क्लियर, इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, क्लियर। अब व्हाट इज ई इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मीन्स द परमिटिविटी ऑफ पर्टिकुलर मीडियम, सपोज द मीडियम इज वाटर, क्लियर। यही आपको मैंने बताया था यहाँ पे 90 तो क्या हो गया ई आर, एंड ई नॉट इज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ ओपन स्पेस। कहने का मतलब इतना है कि हमको किसी भी मीडियम का अगर परमिटिविटी निकालना है तो उसके लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो कितने टाइम से किसके, परमिटिविटी ऑफ ओपन स्पेस के। अगर 80 टाइम्स हुआ तो 80 इंटू ई नॉट, ठीक है, 90 टाइम्स हुआ तो 90 इंटू ई नॉट, 100 टाइम्स हुआ तो 100 इंटू ई नॉट। तो ये बात तो अपन ने समझ के देखी थी। अगर इसी को अपने को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है तो अपन कैसे लिख सकते हैं, permittivity of particular medium is equals to the product of permittivity of open space to the relative permittivity, that is relation। ये जो 90 है वो क्या बता रहा है, इन दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है। रिलेशन मतलब कि जो मेरी वाटर की परमिटिविटी है वो इसके कितनी है, 90 गुना है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ तो 90 इक्वल्स टू ई ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ई ऑफ नॉट, ऐसे बन के आएगा। और इसी जगह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ई आर इक्वल्स टू ई ऑफ डब्ल्यू अपॉन ई ऑफ नॉट, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज़ द रेशियो ऑफ मीडियम ऑफ पर्टिकुलर, इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ पर्टिकुलर मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ ओपन स्पेस। क्या मेरी बात क्लियर है? ये बात की अपन ने किसकी, रिलेटिव परमिटिविटी की। अगर आपके पास डेफिनेशन लिखने को आ जाती है रिलेटिव परमिटिविटी की तो आपको कुछ नहीं लिखना है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, मीडियम मतलब वाटर भी हो सकता है, ग्लिसरीन भी हो सकता है, टू द परमिटिविटी ऑफ ओपन स्पेस, ठीक है। एक और यहाँ पर अपन रिलेटिव परमिटिविटी को एक नाम से और जानते हैं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की भी वैल्यू यही है, पर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन अच्छे से कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटेंस में, जो कि अपना इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का 4th पार्ट है। लास्ट पार्ट जो है अपना वो क्या है, कैपेसिटेंस ही है। तो वो पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक पे ही डिफाइन करता है, तो अपन उसको वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। अभी अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ये कि जो अभी आपकी परमिटिविटी होती है रिलेटिव, दैट विल बी द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ पर्टिकुलर मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ ओपन स्पेस। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, जिसमें अपन देखने वाले कि क्योंकि अब कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखने की भी नीड इसलिए है क्योंकि अपन ये बात अच्छे से जानते हैं कि फोर्स क्या है, अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, अपने को यहाँ पर इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। एक चीज़ और, अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है ई इज़ व्हाट, एप्सिलॉन ऑफ पर्टिकुलर मीडियम। अब अगर मैं को ये नॉलेज मिल चुका है, अब इसके बारे में मेरे को पता चल चुका है कि परमिटिविटी ऑफ पर्टिकुलर मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो क्या मैं इसको अब ऐसा लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर डायरेक्टली ओपन स्पेस दिया हुआ है ना, ओपन स्पेस अगर डायरेक्टली दे रखा है तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लेना है, ठीक है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लेना है कि ओपन स्पेस का अपन डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू क्या डाल देंगे, 8.85। बट अगर सामने वाले ने आपको न्यूमेरिकल के अंदर दे रखा है पर्टिकुलर मीडियम जैसे वाटर, क्लियर है। अब अगर वाटर दिया है तो वाटर देने के साथ में या तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन में रिलेटिव परमिटिविटी गिवन होगा,
या फिर परमिटिविटी ऑफ पर्टिकुलर मीडियम गिवन होगा। तो उससे आपको आपकी एक्सप्रेशन को किस में चेंज कर देना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म पढ़ने के बाद में अपन इस पूरे टॉपिक पे क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल। एक पूरा वीडियो अपन किस पे बनाएंगे, न्यूमेरिकल पे। तो वहाँ पे आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्लियर है।